Hello students, how are you? Fine? Ask from me. What about you, ma'am? I'm also fine. I'm great. So, what's going on? Nothing special, or it's going on very good, isn't it? And today I'm back with the new lesson, that is adverb. So, how you feel by taking that lectures earlier? How you feel like that? But tell me, hurry up. Are you feel comfortable or not? Are you getting the words or not? Yesterday we did that idioms, isn't it? And we also did that verbs, adverbs, verbs and 3 forms of verbs. We also did that. Clear? So now tell me, is there any difference, is there any confusion you people are having, or is there any doubt regarding those lectures which I delivered you earlier? No? So are you using that idioms or that verbs in your speaking or not? Say yes, ma'am. Okay? And you should be like that. करने भी चाहिए आपको ये. Clear? So, tell me what we did in our earlier chapters. We did parts of speech. First one is noun, pronoun, adjective, verb. Clear? We did the 4 parts of speech with ourselves. So, I told you earlier regarding that one that these parts of speech are very much necessary in your speaking. Clear? Without this, you can't be write even a single word correctly. If you don't know about that, where you put adverb, where to put that verb, where to put noun, pronoun, at that time, I can say it's worthless for you people, that what the lesson you people are getting out from me. It's worthless for you. Clear? So what should you do at that time? So what sort of lectures I am delivering you day by day? You have to remind that lectures. Clear? So, अब जल्दी से go through करें. आप लोग अब मुझे बताइएगा कुछ जो हमने कल last videos किए में idioms किए थे ना. I'm asking from you the questions and you have to give the answers for that. Clear? So, tell me students, अपने रंग दिखाना. क्या बोलते हैं हम उसे? रंग दिखाना. Tell me, hurry up, what we are saying to them. अपने रंग दिखाना. We are saying to them, what's the idiom for that? Speak loud. Speak louder, please. Speak up, hurry up. Speak louder. That is showing off colors. Repeat with me. That is showing off colors. Right. So now tell me, a strong-minded man. जो आदमी दिमाग से बहुत तेज होता है, what we are saying to them at that time. For example, if you want to be say your friend is a strong-minded man, so what you can be say at that time? My friend is a iron man, man of iron. Clear? So my friend is a man of iron. Repeat again with me. Man of iron. Again, man of iron. Good. याद है आप लोगों को? It's really good one. कि आप लोग learn कर रहे हैं daily. On your daily basis, you are learning the things. What you are daily getting from your these lessons, isn't it? So now tell me, what is this verb? I'm writing down the sentences. One sentence. You have to tell me, is this sentence a transitive sentence or intransitive sentence? Clear? Means transitive verb or intransitive verb. किए थे कल? On our previous lesson, I told you about that. Now tell me. The teacher teaches us. Now tell me, this sentence is transitive sentence or intransitive verb is that? And this object is needed to complete the sense of the sentence. So this is what? This is transitive sentence. Very good.
That is not a part of adverb. ये adverb का part नहीं है. Adverb मैं आपको अभी start करवाऊंगी. Clear? Just to remind you people that मेरे को भी पता लग जाए कि are you remember the words or not, or you forget all the things what you did earlier. Clear? So this is what? This is the transitive verb or transitive sentence. Is it clear to you? That's really good one. Now I'm writing one more sentence. I am writing a letter. So this sentence is transitive sentence or intransitive verb. We use here which verb? Tell me. Hurry up, hurry up. Don't see from your copy. Pages को back करके मत देखिए क्या ये कौन सा sentence करवाया था मैम ने. I know about you very well. Tell me. This sentence is. Don't open your copies, please, students. That is not the thing. जो आपको पहले करवाया है, तो आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, and you people are doing कि okay, opening your copies and putting out the pages back while that what we wrote over there, and we have to tell to teacher at that time. No, don't do this thing. Please remember this thing in your mind. So जैसे ही मैं आपसे पूछूं on the spot, you have to give me the answer for that. इस तरह लर्न करना है हमें. Clear? अब कॉपीज में लिखा है दोबारा से ढूंढोगे तो यू वॉन्ट बी गेट इन टू द स्पीकिंग वेरी वेल. क्लियर? समझ में आ रही है बात? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ओके, सो आई एम राइटिंग अ लेटर. सो दिस सेंटेंस इज व्हाट? दिस सेंटेंस इज intransitive sentence. Why this sentence is intransitive sentence? Because in this sentence, I am not using any sort of object to complete the sense of the sentence. Clear? So that is why it is an intransitive verb. Clear? Now come to some words which we did about the three forms of verb. Tell me what we are saying to that. किसी से कुछ उधार लेना. Tell me, hurry up. जैसे आपने अपने फ्रेंड को बोला प्लीज मुझे अपना पेन उधार देना, तो क्या बोलेंगे? क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूं? What we are going to say? Speak, hurry up. That is borrow, right? Could I borrow your pen? So you have to speak like this. Could I borrow your pen? क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूं? Clear? So tell me the next word. I give you one example for that one. Okay. Okay, I give you one topic and I'm going to tell you, okay, you come here on the stage and speak on this topic. So what sort of आप लोग क्या करते हैं? घबराते हैं उस टाइम? So what we are saying to them? You people are get confused. Confused. Speak again. घबराना. Confused. Really good one. आपको तो सारे वर्ड्स लर्न हो रहे हैं बहुत अच्छे से. वेरी गुड. यू आर डूइंग वेल. अब देखिए कहीं पे पहुंचना क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आपकी क्लास में 2 बजे पहुंची, तो मैं क्या बोलूंगी? आई पहुंचना. स्पीक अप, हरी अप. आई अराइव्ड हियर at 2 o'clock. Clear? I arrived here at 2 o'clock. Clear हुआ है? और ऐसे ही आप लोग भी स्पीकिंग में यूज करोगे. जैसे अपने फ्रेंड को बोलना कि यार मैं यहाँ पे 2 बजे से आके बैठा हूं, तुम्हारी वेट कर रहा हूं. होता है ना, बहुत बार इंस्टांस ऐसे होता है कि आप पहले पहुंच जाते हो, तो आप ये बोलोगे पहुंच जाता हूं. ठीक है? आप बोलोगे कि आई केम अर्ली बिफोर यू इन द ऑफिस. मैं तुम्हारे से पहले ही ऑफिस में आ गया. क्लियर? और देन आई एम वेटिंग फॉर यू. अब मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूं. क्लियर? सो यू शुड बी स्पीक लाइक दिस. अपनी स्पीकिंग में ऐसे हम यूज करेंगे ये वाले सेंटेंसेस को. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ओके, नेक्स्ट कम टू द एडवर्ब पोर्शन. एडवर्ब पोर्शन पे आइए आप लोग. नाउ यू टेल मी दैट on the parts of speech lesson, I told you what is exactly adverb. Clear?
We did noun, pronoun, adjective, verb. Now tell me what is adverb. मैं नहीं बताऊंगी अभी आपको, आप लोग मुझे बताएंगे what is adverb. Because I told you earlier when I gave you the lesson of the parts of speech. So at that time I explained in detail that what exactly adverb is. Tell me, hurry up. Adjective is what? Adjective. Now I'm going to clear the difference between adverb and adjective. Adjective is that which give, tell me, meaning to. किसको meaning देता है? Verb को meaning देता है adjective? Huh? No. It gives meaning to noun and pronoun. Right. So adjective is that it gives meaning to noun and pronoun. So what is adverb then? Tell me what is adverb. Adverb is that which gives meaning to verb. Clear? ये बताया था मैंने आपको. But the proper definition of adverb is that an adverb is a word which modify a verb, an adjective or another verb, preposition as well. Means they are give meaning to verb, adverb itself, to preposition. Clear? But adverb is not give meaning to noun or pronoun. Adverb noun और pronoun को meaning नहीं देता है. किन्हें meaning देता है adverb? Adverb meaning देता है आपके verb को, adjective को, adverb को, preposition को. Clear? Is it clear to all of you? Write down its definition. An adverb is a verb which modify. किसको मॉडिफाई करेगा? अभी मैंने आपको बताया था वर्ब को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को. क्लियर? A verb, an adjective, and preposition. Clear है? Is this definition is clear to all of you or not? It's very simple definition, and from the very simple word I used in this definition, like an adverb is a word which modify verb, an adjective and preposition. Clear? So when I give you the lecture regarding the parts of speech, at that time I told you that what exactly the adverb is which give meaning to verb. Clear? But the main definition of this adverb is that which give also meaning to adjective, verb and preposition. Make that thing clear in your mind. It is not modified to noun or pronoun. It's only modify verb, adjective and preposition or adverb itself. Clear? So make this thing clear in your mind. The noun pronoun की विशेषता को बताया जाता है, that is adjective, और जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं adjective की, और बाकी चीजों की भी उसे हम बोलते हैं adverb. What we are saying to them in Hindi, that is क्रिया विशेषण. Clear? So write down this definition, and you can also be write an adverb as well. Clear? Now I'm going to give you one example for that regarding the verb. Verb के regarding ये कैसे बताएगा, modify करेगा. Adjective के regarding how it modify that. Clear? So regarding the adverb,
and fourth one is preposition. Clear? So my first sentence is regarding the verb. मैंने बोला लड़का दौड़ा, the boy ran. अब इधर देखिए मैंने इसकी कोई इस चीज का विवरण किया, इसमें कुछ विशेषता बताई मैंने इसमें कि लड़का कैसा दौड़ा, कुछ नहीं बात की मैंने, जस्ट क्या बताया इसमें आपको, आई टोल्ड यू दैट लड़का दौड़ा, दैट्स इट. द बॉय रैन. I didn't give you any sort of that I modified that sentence. I didn't give you in this one. Clear? If I want to be say लड़का कैसा दौड़ा, at that time it's come in the adverb, means it gives विशेषता, it gives meaning to verb. So here verb is what? Verb is ran. Ran is verb. Clear? So I told you that the boy ran. लड़का दौड़ा. अब मैंने वर्ब की विशेषता नहीं बताई अभी तक इसमें. अब अगर मैं बताऊंगी लड़का कैसा दौड़ा, क्लियर? ये होता है ना, तेज दौड़ा, धीरे दौड़ा. तो these are what? These are the what? Adverbs. The boy ran fast. So fast here used as an adverb. Clear? Is it clear to all of you or not? ये clear हुआ? क्योंकि ये तो मैं I told you earlier in the lesson that when I gave you the lesson regarding the parts of speech, I told you this thing over that. Clear? So this is the very basic one, that it modify a verb. That's it. Clear? अब आपको प्रॉब्लम होगी adjective में. Clear? Adjective में कैसे लगाएं अब हम? Isn't it? You are finding the problem in adjective now. कि मैम अब adjective में कैसे आएगा ये? क्योंकि adjective क्या होता है? Adjective किसकी विशेषता को बताता है? Adjective तो noun pronoun की विशेषता को बताता है. Adjective वही विशेषता को तो बताएगा noun और pronoun की, but adjective की itself विशेषता को अगर हम बताएंगे, that is come in the adverb. मतलब उस adjective की ही विशेषता बताई जाएगी आपको बीच में. Clear? So that is called adverb. Isn't it? So write down the sentence. राम एक ताकतवर लड़का है. राम is strong man. राम ताकतवर लड़का है. राम is strong man. Clear? राम एक ताकत, ए लगा लीजिए. A is used for the एक. Clear? राम is a strong man. अब इधर देखिए, man is what? Man क्या है? From the parts of speech. Tell me, hurry up students. What is man here? Tell me. Speak louder. It's a what? It's an adjective. Or it's a noun or pronoun. Speak louder. It's a noun, right? So, जो noun की विशेषता को बता रहा है, ये कैसा आदमी? ताकतवर. तो this is what? This is adjective. अब बताइए इसमें adverb कहाँ यूज हुआ? Am I use any adverb here in this? क्या मैंने कुछ adverb यूज किया है इसमें? Tell me, hurry up. किया है कि नहीं किया है? Adverb use. नहीं हुआ है. कहां पे हुआ adverb? ये तो helping verb है. Is a helping verb. And Ram is a noun again. Clear? अब मैंने बोला था राम एक ताकतवर लड़का है. राम इज अ स्ट्रॉन्ग मैन. क्लियर? अब मैं अगर बोलूं कि राम एक बहुत ताकतवर लड़का है, अब बहुत से क्या आ गया? पहली बात तो उसकी विशेषता और बढ़ गई कि बहुत ज्यादा ही ताकतवर है वो. क्लियर? सो बहुत ताकतवर है मीन्स राम इज अ very strong man. So here very is what? It qualifies your adjective. It modifies the adjective here. So very is used as an adverb here. Write it down. Hurry up, this thing.
Now come to the adverb session. Adverb is giving meaning to verb. I gave you example, adverb is giving meaning to adjective. Now I'm going to give you the example that adverb is going to give you the meaning to the adverb itself. वो adverb को ही meaning देगा. Clear? अब बताइए adverb को कैसे meaning देगा? Let's take this example. मैं यही वाला example दोबारा से इसमें लिख रही हूँ so that it will be clear to all of you regarding that one कि how you can be use the adverb which modify adverb. Clear? So इसमें क्या था? लड़का तेज दौड़ा. The boy ran fast. ठीक है? ये this sentence is give what? This is the verb and this is the adverb. So it modified this verb. This is the noun. This is article. ठीक है? ये इसको modify कर रहा है. इसमें कुछ यूज हुआ कि adverb की ही विशेषता बताई जा रही है? नहीं. अब अगेन जैसे मैंने इसमें बोला था बहुत ही ताकतवर. अब मैं इसमें भी अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू द बॉय रैन फास्ट. लड़का तेज दौड़ा. अब मैं बोल रही हूं द बॉय रैन वेरी फास्ट. लड़का बहुत तेज दौड़ा. क्या बोल रही हूं ध्यान से सुनिए. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स. डोंट टॉक इन द क्लास. बी अटेंटिव. When I am delivering the lecture, please be attentive in the class. Okay? So look here. The boy ran. लड़का बहुत तेज दौड़ा. The boy ran very fast. So fast is what? Adverb. इसको ही modify किया जा रहा है as an adverb. Clear to all of you this thing? मैंने difference लेके बता भी दिया है कि क्या difference है दोनों में. I hope it's clear to all of you. Okay? Now come to the preposition. I'm writing down one example. The birds flew over his head. चिड़िया उसके सर के ऊपर उड़ी. ठीक है? चिड़िया उसके सर के ऊपर से उड़ी. तो क्या इसका सेंटेंस होगा? द बर्ड्स फ्लू. फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू. क्लियर? द बर्ड्स फ्लू ओवर हिज हेड. मतलब ऊपर. ओवर का मतलब होता है ऊपर. सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ प्रीपोजिशन. मतलब प्रीपोजिशन. प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान. I told you earlier regarding that one, what is preposition? Which come before noun or pronoun in the sentence and give meaning to the sentence. That is called preposition. Clear? So, in this preposition, in this sentence regarding the preposition, what is that? The birds flew over his head. So, in this sentence, am I use any sort of adverb in this? Look here, then tell me. Yes, students, firstly look here, then you tell me about that. Hurry up. Look here, then you tell me. Adverb use हुआ है कि नहीं हुआ है कोई adverb use? Tell me, hurry up. No ma'am. Say no ma'am. Speak louder, please. देखिए यहां पे कोई एडवर्ब नहीं यूज हुआ है. क्लियर? मैंने सिंपल बोला है कि चिड़िया उसके सर के ऊपर से उड़ी. अब मैं बोल रही हूं चिड़िया उसके बिल्कुल सर के ऊपर से उड़ी. तो मैं क्या बोलूंगी? द बर्ड्स फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड. सो ओवर इज व्हाट? Over is a preposition. And exactly is what? Which modify this? That is called adverb. Now it's clear to all of you how the adverb qualify or modify verb and adjective, preposition or adverb itself. Clear to all of you? So be fast, within a minute write it down this in your copies. Hurry up. ये अपनी copies में लिखिए.
और आपको पता ही है कि लेक्चर के एंड होने से पहले मैंने आपसे पूछना है, सो बी अवेयर ऑफ दैट. क्लियर? आप लोग ध्यान से लिखिए और लर्न दैट वन. बी फास्ट, हरी अप. Write it down, students. Be fast. Done, students, or not? It's done. Now come to the kinds of adverb. Write it down then. Be fast, hurry up. Now we are going to do the kinds of adverb. हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई ना किसी तरह कोई ना कोई काइंड्स बताई होती है, सो दैट इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग दैट कि हाँ एडवर्ब क्या होता है एग्जैक्टली और कहां पे यूज किया जाता है. Now we are going to do the kinds of adverb. Clear? So the kinds of adverb, we are having the three kinds of adverb, that is simple adverb, interrogative adverb, and last one is your relative adverb. Clear? Write this in your copies, and after that I am going to explain this first one, that is simple adverb. Simple adverb मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगी कि क्या होते हैं. इसे हम सामान्य क्रिया विशेषण बोलते हैं, इंटेरोगेटिव को हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, और रिलेटिव को हम यौगिक क्रिया विशेषण बोलते हैं. Clear? So write it down in your copies. Be fast. Now come to the first one, that is simple adverb. This simple adverb is again divided into the various categories. First, I am going to explain you regarding the adverb of time. मतलब समय का क्रिया विशेषण हम कैसे यूज करेंगे. और मैंने आपको वर्ड बताया था पहुंचना को हम क्या बोलते हैं. व्हाट वी आर सेइंग टू पहुंचना इन इंग्लिश. हरी अप, टेल मी द वर्ड. अराइव, है ना.
मैंने बोला सीता लेट पहुंची या सीता देरी से पहुंची, तो क्या बोलूंगी मैं? सीता arrived late. So late is what? It's related to your time. Clear? So it's adverb of time. Next example of this one. वे यहां रोज आता है. वह यहां रोज आता है. तो मैं बोलूंगी he comes here daily. क्या बोलेंगे? स्पीक विद मी. He comes here daily. Speak up. He comes here daily. Good. So daily is what? Daily क्या बता रहा है आपको? समय के बारे में बता रहा है. Clear? Next, a very good example of that you maybe use in your speaking very frequently. ये भी आप अपनी speaking में बहुत frequently use कर सकते हैं. मैंने बोला कि वे यहां ठीक अभी आया. वह यहां ठीक अभी आया. He came here just now. So the difference, what is the difference between both of the sentence? In first sentence, what is the meaning of first sentence? That इसका क्या मतलब है first sentence का? He comes here daily, मतलब वो यहां रोज आता है. So in the second sentence is that वो यहां अभी अभी आया. ठीक है? या वो यहां ठीक अभी आया. तो he came here just now. या बहुत ज्यादा स्पीकिंग में यूज करते हो ना, जैसे आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि आप कब आए, आपने बोला मैं जस्ट अभी अभी आया, तो बोलोगे कि आई केम हियर जस्ट नाउ, या मैं ठीक अभी आया. क्लियर? सो दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस ऑफ योर स्पीकिंग एज वेल. तो जस्ट नाउ क्या इट डिनोट्स? व्हाट इट डिनोट्स? एडवर्ब ऑफ टाइम हियर. क्लियर? So write it down, first one, that is adverb of time in your copies, and after that I am going to tell you the second one, that is adverb of manner. Write it down, students, be fast now. Can I rub this? आगे चले? Okay. Now come to the second one in simple adverb as well. अभी हम simple adverb ही कर रहे हैं. Clear? जब मैं आपको इंटेरोगेटिव करवाऊंगी और रिलेटिव करवाऊंगी, एट दैट टाइम आई टेल यू रिगार्डिंग दैट वन. क्लियर? सो फर्स्टली डू द सिंपल वन. सेकेंड वन, इन द सिंपल एडवर्ब कम्स एडवर्ब ऑफ मैनर. अब मैनर का मतलब क्या? कि मतलब कोई भी अगर काम हुआ है वो किस ढंग से हुआ है. क्लियर? किस मैनर से हुआ है वो वाला काम. सो दैट्स कम इन योर एडवर्ब ऑफ मैनर. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि वो साफ लिखता है. ठीक है? मैंने बोला कि वह साफ लिखता है, तो मैं क्या बोलूंगी? ही राइट्स क्लियरली. अब देखिए मैंने इसमें मैनर बताया कि वो कैसा लिखता है, साफ लिखता है. क्लियर? सो दिस इज व्हाट? क्लियरली. क्लियर इज द एडवर्ब ऑफ मैनर हियर. क्लियर? And okay, I'm giving you next sentence. वो धीरे धीरे आया. He came slowly. Clear? This is also adverb of manner, means इसमें भी ढंग बताया जा रहा है. कैसा आया? धीरे धीरे आया. Clear? So what you are going to be say at that time? He came slowly. ठीक है? वो धीरे धीरे आया. अब नेक्स्ट है सेंटेंस, वे मेहनत करते हैं.
तो क्या बोलेंगे हम उन्हें? दे वर्क हार्ड, या वो मेहनती हैं, दे वर्क हार्ड. सो अगेन कैसे मेहनत करते हैं? बहुत ही दिल लगा के, मन लगा के, और पूरा दिल लगे रहते हैं. सो दैट इज कम ऑल्सो इन एडवर्ब ऑफ मैनर. I think these examples are sufficient to explain you people regarding the adverb of manner, isn't it? So, now again what you want to do? Write it down in your copies. Hurry up. Next one we are going to do regarding the simple adverb, that is adverb of place. Clear? जिसमें ये हम लोग स्थान के बारे में बात करेंगे. Clear? Please students, be careful of while you are writing this one, and be careful, open your ears and open your mind as well, because these adverbs are quite important for your speaking as well. Clear? For example, verbs are also important for your speaking. So that is why adverbs are also very important in your speaking portion. Clear? Because कई हमने तो बहुत बार ही बोलना होता है, यार मैं अभी अभी यहाँ आया, मैं धीरे धीरे वहां गया, उसने तेजी से खाना खाया, है ना, वो बहादुरी से लड़े. तो what is this all? This is the adverb. So these are also used in your frequent English. ये भी हमारी English में frequently use हो रहे हैं ना. We are using that one in our English very frequently, that thing. Clear? So write it down, these things, students. Hurry up in your copies. Next is adverb of place. The third is that adverb of place, मतलब जहां पे स्थान के बारे में पता चलेगा हमें. फर्स्ट एग्जांपल इसका मैं दे रही हूं आपको. वे यहां आती है. She comes here. Here means what? It is the adverb of place we used here in this sentence. हमने adverb of place यूज किया है इस सेंटेंस में, here को. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एग्जाम्पल फॉर दैट वन. जैसे आप लोग पूछते हैं ना अंदर आने से पहले क्लास से, यूजुअली, ठीक है, आपको क्लास के अंदर आना है तो आप लोग क्या पूछते हैं टीचर से? व्हाट यू आस्क फ्रॉम द टीचर. पूछते मतलब आस्क. क्या पूछते हैं आप टीचर से? मे आई कम इन. ठीक है, तो टीचर क्या आंसर देता है? प्लीज कम इन. सो दैट इज व्हाट? दैट इज ऑल्सो, इन इज ऑल्सो अ adverb of place. Here we are using that one. That is please come in. In is what? In is also an adverb of place. Here we are using. Clear? One more example I am going to give you regarding this one. The example is that वह वहां जाएगा. Clear? So the sentence is he will go there. In this, there is used as a adverb of place. Please students clear this thing in your mind that go there. There का मतलब वहां. Here का मतलब यहां. Clear? So there is a lots of difference between here and there.
शी कम्स हियर मतलब वो यहां आती है, यहां, और वहां जाएगा, he will go there. So make that thing clear in your mind regarding this one. Don't we get confused कि यहां को हम dear बोलेंगे? No, यहां को हम क्या बोलेंगे? Here. और वहां को हम क्या बोलेंगे? वहां को हम बोलेंगे dear. Clear? So write it down this in your copies. Hurry up. Write it down, students. Be fast. Done, students? Now come to the next one, that is adverb of number. The fourth one is adverb of number. Clear? अब देखिए इससे आपको पता चल रहा है कुछ कि adverb of number is what? एडवर्ब ऑफ नंबर क्या है? मतलब जिसमें नंबर बताया जाएगा, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे. ठीक है. अब मैं बोलती हूं कि वे 2 बार मुझसे मिलता है. ठीक है. मैं बोलूंगी ही मीट्स मी ट्वाइस. ट्वाइस का क्या मतलब होता है? 2 बार. क्लियर? So twice mean is 2 times. He meets me twice. Is it clear to all of you? So next sentence is that मैंने उसे 1 बार देखा. तो आप लोग क्या लिखेंगे इसे? एक को क्या बोलते हैं? One नहीं, once. I saw him once. मैंने उसे 1 बार देखा. I saw him once. So once here we used as an adverb of number. Clear? Is this clear to all of you? जैसे मैंने बोला कि वे यहां कभी नहीं आती है. ठीक है, तो क्या होगा इसका सेंटेंस? शी नेवर कम्स. यहां को क्या बोलते हैं? मैंने बोला कि वे यहां कभी नहीं आती है. शी नेवर कम्स दियर. अब देखिए सही लिखा मैंने सेंटेंस. वे यहां नहीं आती है या वे यहां कभी नहीं आती है. तो क्या यह सेंटेंस ठीक है? इज दिस सेंटेंस इज क्लियर? लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट्स. नाउ टेल मी, इज दिस सेंटेंस इज क्लियर और नॉट? करेक्ट है कि नहीं है? यस, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहां को हम क्या बोलते हैं? हियर. दियर किसको बोलते हैं? वहां को. क्लियर? सो देयर इज अ करेक्शन इन द सेंटेंस रिगार्डिंग दिस. यू हैव टू राइट हियर. आप हियर लिखेंगे यहां पे. यहां को हम हियर बोलते हैं. क्लियर? सो राइट इट डाउन दिस एडवर्ब ऑफ नंबर इन योर कॉपीज. राइट? बी फास्ट. Write it down in your copies. Next we are going to do that is adverb of reason. Reason means कारण. Clear? वो करेंगे अभी हम.
Is it clear to all of you? Next is fifth one, that is also come in your simple adverb. Students, अभी हम simple adverb ही कर रहे हैं, अभी हम दूसरे adverb पे नहीं आए हैं. Fifth one is your adverb of reason, or we are going to say that also cause and effect. या तो हम reason भी बोल सकते हैं और या फिर हमें इसे cause and effect भी बोल सकते हैं. Both are correct in that. दोनों ही चीजें करेक्ट हैं. क्लियर? कारण या फिर प्रभाव. क्लियर? अब मैंने बोला कि इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता. I do not therefore like him. मैं इसीलिए उसे पसंद नहीं करता या इसीलिए मैं उसको पसंद नहीं करता. बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे ये भी स्पीकिंग में यूज होएगा ना बहुत फ्रीक्वेंटली आपके, और नॉट. यू आर यूजिंग दिस वेरी फ्रीक्वेंटली इन योर स्पीकिंग एज वेल. हाउ? कैसे करेंगे बताइए? जैसे राहुल इज वेरी सेल्फिश बॉय. राहुल एक बहुत ही सेल्फिश लड़का है. क्लियर? मतलब अपना ही भला सोचता है, दूसरों का नहीं सोचता है. दूसरे का गलत हो जाए तो लेट इट बी, हो जाए. क्लियर? सो उस टाइम हम क्या बोलेंगे? राहुल इज अ वेरी सेल्फिश बॉय. आई डू नॉट देयरफॉर लाइक हिम. मैं इसीलिए उसे पसंद नहीं करता. ये बोलेंगे ना हम सेंटेंस. देखिए, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल फॉर दैट. राहुल इज अ सेल्फिश बॉय, कॉमा, I do not therefore like him. इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता. क्लियर? Is this sentence clear to you? इसमें क्या है? कारण बताया जा रहा है कि क्यों उसे पसंद नहीं करता है. So therefore we use here as an adverb of reason or cause or and effect. Clear? So write it down this sentence in your copies. Hurry up. Next comes in your simple adverb. Last one is that is adverb of degree. अब हम करेंगे adverb of degree. Degree means परिणाम उस चीज का. Clear? Now we are going to do that adverb of degree. एडवर्ब ऑफ डिग्री देखिए कैसे आएगी. अब मैंने बोला आम बहुत मीठा है. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. आम बहुत मीठा है. द मैंगो इज, मैंने बोला सॉरी, आम मीठा है. द मैंगो इज स्वीट. अब मैं बोलूंगी आम बहुत मीठा है तो आई एम गोइंग टू बी से वेरी हियर. ठीक है? तो वेरी इज व्हाट? वेरी इज ए डिग्री और क्वांटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पे. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू बी से कितना मीठा है तो मैंने बोला बहुत मीठा है, तो आई एम गिविंग द क्वांटिटी एज वेल इन दिस. क्लियर? सो आप इस पे ये भी राइट डाउन कर लीजिए फॉर योर नॉलेज कि इसकी डिग्री और क्वांटिटी को भी बताता है ये. क्लियर? And the next example is Meera sings well. मीरा अच्छा गाती है. मीरा बहुत अच्छा गाती है तो हम बोलेंगे मीरा sings pretty well.
So pretty here I used as an adverb of degree in this sentence. Clear? Please students make this thing clear in your mind regarding all the adverbs. I am saying you again and again and again. मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ इस चीज के बारे में. Clear? This is not very simple thing that you people are getting out कि ठीक है adverb है हो जाएंगे. But no, don't do this thing because it's quite important for you people. ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. इसके बिना आप लोग इंग्लिश में प्रयोग नहीं कर पाएंगे ढंग से. Isn't it? So use this especially in your while you are speaking, use these adverbs as well. होता है ना बहुत बार यूज हमें इन एडवर्ब्स का. कितनी बार यूज करना पड़ता है हमें कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है हमें यूज इन चीजों का. क्लियर? सो राइट इट डाउन दिस इन योर कॉपीज. Done students? So I completed with your simple adverb. Now second kind क्या की थी हमने? देखिए copies में. Back your pages and now tell me that what we did for the second kind of the adverb. Tell me, hurry up. Simple adverb के बाद next कौन से adverb आते हैं? Interrogative adverb. So write it down. Now we are going to do that interrogative. Now your simple adverb has finished. Now we are going to do that. Interrogative adverb. As we all know about the interrogative, that interrogative is what? Interrogative sentences are those sentences which are used which are used to ask questions from somebody. Clear? So these are called interrogative sentences. जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, which is used to ask question from the students, या which is used to ask question from anybody, that is come the interrogative. So what we did, interrogative pronoun we did also interrogative adjective, है ना. Now we are going to do that interrogative adverb as well. So the first example is हरी कहाँ है. Any of your friend, आप लोग पूछते हो ना स्पीकिंग में कि यार राहुल कहाँ है, मनीष कहाँ है, शीला कहाँ है, सोफी कहाँ है. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैम कहाँ है. जैसे आप लोग क्लास में आए, मैम नहीं है क्लास में, तो आप लोग क्या बोलोगे? मैम कहाँ है, सर कहाँ है. So what is this? This is also very simple speaking we people are doing. So here, how you can be use it out the interrogative sentence in this? You are going to be say here like, where is sir? मतलब सर कहाँ है. Where is sir? Clear? So that is what? That is called interrogative sentence. अब next sentence is that कि वे कब आ रहे हैं. कब के लिए क्या यूज होता है? देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास W's आते हैं. उसमें क्या आता है? व्हाट, क्या, विच, कौन सा, वाई, क्यों, वेयर, कहां, व्हेन, कब, हु, कौन. क्लियर? हुज, किसका. So these are what? These are the W's that are always come in your interrogative sentences. ये मैं later on आपको chapters में clear करूंगी. What is exactly the meaning of what, which, why, where, when, who and whose. So these are the 7 W's that are quite important in your speaking as well, to ask the question from any person. Clear?
So these are very important for you people. Let's take second example. आप उदास क्यों हो? ये भी हम लोग बहुत यूज करते हैं ना स्पीकिंग में, ये वाला सेंटेंस भी, आप उदास क्यों हो? तो क्या बोलेंगे हम उदास को, क्या बोलते हैं? व्हाट वी आर सेइंग टू उदास? व्हाई यू आर, या व्हाई आर यू सैड, यही बोलते हैं ना, व्हाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हो? वेयर कहा, व्हाई क्यों, ठीक है। अब मैंने बोला था वो वे कब आएंगे, कब, इसमें से बताइए मुझे कब के लिए क्या यूज होगा, व्हाट यूज होगा, विच होगा, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, क्या यूज होगा कब, वे कब आएंगे। व्हेन यूज होगा इसमें, राइट। इसका आएगा व्हेन विल दे कम, वे कब आएंगे, व्हेन विल दे कम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग वन ना, इंटरेस्टिंग है ना, मजा आ रहा है ना करने में, बिकॉज ये लोग, ये वाली चीजें तो हम डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं और क्वेश्चंस भी हमें जरूर ही पूछने होते हैं, है ना। तो सर कहाँ है, रमेश कहाँ है, मेरा फ्रेंड कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, घर जाते हो तो मामा के ऊपर बोलते हो कि मेरी कॉपी कहाँ रखी है, मेरी बुक कहाँ रखी है, तो कैसे बोलेंगे? वेयर इज माई कॉपी, वेयर इज माई बुक, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई पर्स, वेयर इज माई वॉलेट, वेयर इज माई बैग। सो यू आर बी यूजिंग दीज सेंटेंसेज इन योर डेली स्पीकिंग एज वेल। नेक्स्ट हमने बात की तुम उदास क्यों हो, Why are you sad? ठीक है, क्यों मतलब why, और why का आंसर क्या किस में आता है? Because में। जब भी हमें किसी के why के क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो we are always giving in because, हम हमेशा because में देते हैं उसका आंसर। क्लियर? ये आपको डिटेल में सारा चैप्टर में करवाऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट, सो दैट कि आप जब भी किसी से क्वेश्चन पुट अप करो तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल एज वेल एज द अदर वन टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। दूसरे बंदे को भी इजीली पता चल जाएगा कि हाँ आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, बहुत करेक्ट इंग्लिश में पूछ रहे हो, उसके बाद उसको भी आंसर देना होगा उसी इंग्लिश में। क्लियर? अब जो भी चीजें आप करके चाहते हो ट्राई टू बी यूज इन योर विद योर क्लासमेट एज वेल। अब अभी हम रोल प्लेस करेंगे अगली एडवांस क्लासेस में जाके, तो उसमें क्या होगा कि मैं आपको एक रोल प्ले दे दूंगी, एक डॉक्टर बना दूंगी, एक को पेशेंट बना दूंगी, अब मैं आपको एक सिचुएशन भी दे दूंगी उस टाइम पे। क्लियर? कि किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को, आप पेशेंट को कैसे डॉक्टर के पास जाना है, क्या बात करनी है, डॉक्टर को कैसे आंसर देना है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द पब्लिक स्पीकिंग दैट वी पीपल आर यूजिंग। पब्लिक स्पीकिंग हम यूज करते हैं ना, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। चलो डॉक्टर के पास नहीं जाना तो लेट इट बी, रखिए इसे साइड पे। और आप लोग बताइए हमें रेस्टोरेंट्स में जाना होता है कि नहीं, जाते हैं कि नहीं हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए? वी आर गोइंग देयर, हम जाते हैं वहां पे, ठीक है। अब रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, वहां तो वेटर्स भी आजकल 5 स्टार रेस्टोरेंट्स के, बहुत अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट्स हैं दिल्ली वगैरह में, तो वहां पे तो जो जितने भी वेटर्स है दे आर ऑल्सो स्पीकिंग इन इंग्लिश वेरी वेल। सो एट दैट टाइम आपको भी हेजिटेशन होने लग जाती है, यार दे पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्लियर? सो आपको इसीलिए चीजें करवाई जा रही हैं कि आपको अगर किसी भी चीज का क्वेश्चन पुट अप करना है तो कैसे करना। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा, ये वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, विच, व्हाट, ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पूछ पाएंगे। क्लियर? कि कब को हम क्या बोलते हैं, व्हेन बोलते हैं, क्यू को हम वाई बोलते हैं, वेयर को हम कहां बोलते हैं, व्हाट को क्या बोलते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन दैट। क्लियर? जैसे हमने पूछना है आप कैसे हैं, कैसे के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी आर यूजिंग हाउ। तो हम क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। जब हम पहली बार किसी पर्सन से पूछते हैं तो हम उसे ऐसे पूछते हैं, हाउ डू यू डू। अदरवाइज हम नॉर्मल पूछते हैं, हाउ आर यू। तो जब भी मैं क्लास में आपका क्लास लेक्चर स्टार्ट करती हूं, व्हाट क्वेश्चन आई ऑलवेज आस्किंग फ्रॉम यू, आई एम ऑलवेज आस्किंग फ्रॉम यू। कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं आपसे डेली?
यही क्वेश्चन पूछ रही हूं ना कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, बिकॉज आप लोग मेरे को जान चुके हो, मैं भी आप लोगों को जान चुकी हूं बहुत अच्छी तरह से, इजंट इट? सो अगर आप कभी किसी से फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप ये यूज करेंगे, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। क्लियर हुआ है? गुड। और इसमें हम हाउ की जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच। मेनी का मतलब है कितने, हाउ मच का मतलब है कैसे। जैसे कल हमने एडजेक्टिव किए थे ना, उसमें से वर्ब किए, तो उसमें हाउ मेनी और हाउ मच के क्वेश्चंस भी पुट अप हुए थे। जैसे हाउ मेनी पेन डू यू हैव, या हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, ये काउंट हो सकती है ना, तो हम मैनी लगाएंगे, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव। अब ये देखिए ड्रेसेस जो है काउंट हो सकती है, इसलिए मैंने लगाया हाउ मेनी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन आई आस्क्ड फ्रॉम यू। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपके पास कि हाउ मेनी, मतलब आप कितनी शुगर चाहते हैं एक चाय के कप में, तो आप कैसे पूछेंगे उसे, हाउ मच शुगर डू यू वांट। तो मच कहां पे यूज हुआ, फॉर द अनकाउंटेबल नाउन। शुगर क्या है, शुगर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, है ना। और इधर ड्रेसेस क्या है, काउंटेबल नाउन। So I told you earlier when I gave you this lecture regarding the countable and uncountable noun, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा हाउ मेनी लगाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ हम हमेशा हाउ मच लगाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ राइट इट डाउन दिस इन योर कॉपीज। डन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करें। चलिए, योर नेक्स्ट एडवर्ब इज दैट इज लास्ट वन, रिलेटिव एडवर्ब। ये देखिए रिलेटिव एडवर्ब कौन से एडवर्ब होते हैं, रिलेटिव्स कौन होते हैं, हमारे रिलेशंस, है ना। रिलेटिव्स क्या होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे सगे संबंधी। क्लियर? वो क्या करते हैं, हु आर दे, कौन होते हैं वो
मीन्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती हैं. क्लियर? आपकी मेटर्नल फैमिली है, मेटर्नल अंकल इज देयर, योर पेटर्नल अंकल एंड पेटर्नल आंट इज देयर. So you want to be combined that. That is why we are saying them they are our relatives. इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं कि वो हमारे relatives है, क्योंकि वो हमें जोड़ते हैं आपस में. ठीक है? तो relations क्या होते हैं? That is relatives. Clear? यही होते हैं ना. तो ऐसे ही हमारा relative adverb है जो कि क्या करता है, जो कि जोड़ता है दो सेंटेंसेस को आपस में. जैसे कंजंक्शन करवाई थी मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में, that is also combined this two sentences or two words. That is why this is also the same as them. तो relative adverb भी वही होते हैं कि जो दो sentences को या दो से ज्यादा sentences को आपस में जोड़ते हैं. These are called relative adverbs. अब मैंने बोला कि यही एक ऐसी जगह है, नहीं, ये एक जगह है जहां हम मिले थे. यही जगह है जहां हम मिले थे. तो अगेन ये मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया है. दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट. क्लियर? सो हियर यही वे जगह है जहां हम मिले थे. दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट. सो वेयर इज यूज्ड एज अ व्हाट? एज अ रिलेटिव एडवर्ब. इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस इज द प्लेस वेयर आई सॉ हिम. यही जगह है जहां मैंने उसे देखा था. अब देखा था, आई सॉ हिम, तो क्या है? वेयर इज अगेन व्हाट? यूजिंग एज एन relative pronoun, relative adverb. Clear? अब next is Ram knows the way how the essay is written. राम जानता है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है. Ram knows the way how an essay is written. Clear? ये मैं आपको क्लियरली लिख देती हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हो इसमें कि ऐसे कैसे लिखा जाता है. राम नोज द वे हाउ एन ऐसे इज रिटन. क्लियर? सो हाउ यहां पे क्या काम कर रहा है, किस चीज का काम कर रहा है? इट इज ज्वाइनिंग द टू सेंटेंसेस. राम नोज द वे और एन ऐसे इज रिटन. दिस इज द प्लेस आई सॉ हिम. सेकेंड सेंटेंस. फर्स्ट वन अगेन दिस इज द प्लेस एंड सेकेंड सेंटेंस इज वेयर वी मेट. सो इस तरह ये रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं आपस में सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं. क्लियर? सो these are all about your adverb session. Clear? So ये सारा हमारा आज का adverb session था. अब आप लोग जल्दी से 5 minutes, sorry, not 5 minutes, 2 minutes में रिवाइज कीजिए. इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी, और उसके बाद मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ सारा. 2 मिनट लगाइए. ओपन योर कॉपीज, पीछे बैक करके देखिए क्या किया हमने. ठीक है? 3 वर्ब्स की एडवर्ब्स किए हमने. सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव. जल्दी से 2 मिनट्स दे रही हूं आप लोगों को. रिवाइज इट आउट. क्लियर? After that, I will be here and going to explain you each and everything regarding that one. And I'm going to be asking from you. Clear? I'm going to ask from you. Hurry up, do fast.
Okay, students, revise. Done? और मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवाती हूं. नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी अबाउट दैट वन. अब आप लोग मुझे बताने जा रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग टू बी टेल यू रिगार्डिंग दैट. फर्स्ट हमने किया था सिंपल एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब में हमने फर्स्ट कैटेगरी क्या की थी? एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना. एडवर्ब ऑफ मैनर में मैंने आपको सेंटेंसेस लिखवाए थे. उस रिगार्डिंग कुछ और वर्ड्स भी आ सकते हैं, वो आप लिख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, सो, बैडली, क्लियरली, सर्टेनली, सर्टेनली. क्या? सो ये वाले कुछ वर्ड्स आएंगे आपके जो आप लोग यूज कर सकते हो. वेल भी यूज कर सकते हो. यू मे ऑल्सो यूज स्लोली, क्विकली. सर्टेनली मीन्स अवश्य ही. ठीक है. तो नेक्स्ट आया था हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, समय. क्लियर? उसके लिए भी हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं कि हम टाइम को भी कैसे यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ, अभी, देन, सिंस, बिफोर, एगो. बिफोर पहले, अगो बहुत पहले. क्लियर? सो अर्ली जल्दी, लेट, टुडे, प्रेजेंटली. अर्ली जल्दी, लेट बाद में, प्रेजेंटली अभी, टुडे आज, यस्टरडे कल, टुमारो आने वाला कल. यस्टरडे होता है बीता हुआ कल जो बीत गया है. टुमारो मीन्स आने वाला कल. ठीक है, यही होता है ना. एकदम से, इमीडिएटली, दैट वी आर यूजिंग ना, कि एकदम से मीन्स इमीडिएटली. Write it down this in your copies. Hurry up. Done, students? नेक्स्ट हमने कौन सा एडवर्ब किया था? हरी अप, टेल मी. डोंट सी फ्रॉम योर कॉपी स्टूडेंट्स. अपने आप बताइए कौन सा किया था हमने नेक्स्ट वर्ब. दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. वी डिड दैट नाउ. डोंट सी फ्रॉम योर कॉपीज प्लीज. खुद रिमाइंड कीजिए और बताइए मुझे. यही था. और इसमें क्या चीजें आई थी? व्हाट कम्स इन दैट प्लेस? ठीक है. हियर, डियर,
हियर मीन्स मैंने आपको बताया था यहां, देयर मीन्स वहां, नाउ, in, out. So these are all what? These are all called an adverb of place. Clear? So you can be use it out here like where, inside, outside, below, above. That is also a place we are talking about. Below means niche, above means upar. Clear? Inside means andar, outside means bahar. So these are all called an place, an adverb of place. Clear? नेक्स्ट कौन सा किया था हमने? एडवर्ब ऑफ नंबर. अब एडवर्ब ऑफ नंबर में हमने क्या क्या किए थे? टेल मी. मैंने आपको बताया था, एक को हम बोलेंगे मैंने उसे एक बार देखा, आई सॉ हिम वंस. मैंने उसे दो बार देखा, आई सॉ हिम ट्वाइस. मैंने उसे तीन बार देखा, आई सॉ हिम थ्राइस. सो दीज आर व्हाट? वंस, ट्वाइस, थ्राइस. सो दीज आर द एडवर्ब ऑफ, दीज आर एन एडवर्ब ऑफ नंबर्स. हरी अप. और बताइए इसमें कोई एग्जाम्पल. जैसे हमेशा मैंने बोला, दैट इज ऑल्सो कम्स इन दिस. फ्रीक्वेंटली, अक्सर. क्लियर? और हम बोलेंगे दोबारा से, दैट इज ऑल्सो कम इन दिस अगेन, एडवर्ब ऑफ नंबर. ठीक है? जैसे यू अगेन कॉल अप मी. क्लियर? आप मुझे दोबारा से कॉल कर सकते हैं. यू अगेन कॉल्स अप मी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? और नेक्स्ट कौन सा किया था? जल्दी, बी फास्ट, टेल मी. नेक्स्ट एडवर्ब वी डिड एडवर्ब ऑफ रीजन. रीजन मीन्स कारण. ठीक है? और कॉज और इफेक्ट के बारे में भी मैंने आपको कुछ बताया था. जैसे मैंने बोला था therefore, hence. So in an adverb of reason और cause and effect, कारण और उसके प्रभाव के बारे में जब हम बताते तो we are using these in that. ठीक है? Write it down in your copies, be fast. जैसे on account of, on behalf of, ड्यू टू दिस थिंग, या ड्यू टू रेन. ठीक है? ड्यू टू रेन बोलते हैं ना, वर्षा के कारण. ऑन बिहाफ ऑफ, उसकी जगह पे मैं आज ऑफिस में आया. ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड टुडे आई केम इन द ऑफिस. ठीक है? सो दीज आर व्हाट? दीज आर द एडवर्ब ऑफ रीजन एंड कॉज एंड इफेक्ट, जो भी हम मैंने आपको अर्लियर आई टोल्ड यू रिगार्डिंग दैट वन. क्लियर? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? गुड. कॉज एंड इफेक्ट में हम ये भी लगा सकते हैं, वी आर ऑल्सो सेइंग दिस लाइकवाइज. लाइकवाइज मतलब ऐसे ही. ठीक है? नेक्स्ट वर्ड अकॉर्डिंगली. अकॉर्डिंगली मीन्स तदनुसार. ठीक है? और जैसे अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, ही रोट अ वेरी गुड एंड नाइस बुक दैट इज द नाइटमेयर. क्लियर? सो ऐसे हम ये चीजों को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आती है, आई थिंक ऑल योर एडवर्ब्स, आई थिंक सो इट्स क्लियर टू यू, लाइक द सिंपल एडवर्ब व्हाट वी डिड. और इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया था? इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि दैट हाउ यू पीपल are going to ask the question from others. Clear? In that your all 7 W's come. 7 W's कौन कौन से होते हैं? Tell me, hurry up. अब मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ इंटेरोगेटिव एडवर्ब.
इंटेरोगेटिव एडवर्ब में मैंने बताया था आपको 7 W's आएंगे. कौन कौन से? वाई, वेयर, विच, व्हेन, व्हाट, हु और whose. क्लियर? वाई का मैंने आपको बताया था क्यों. वेयर मीन्स कहां, विच मीन्स कौन सा, व्हेन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन एंड हुज मीन्स कौन सा. अब आप लोग मेरे को बताएंगे अब मैं आपको सेंटेंस बोल रही हूं, रमेश टॉम को क्यों मार रहा है. क्वेश्चन वाला सेंटेंस है. इट्स अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सेंटेंस. इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्लियर? सो इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इफ whenever क्यों comes, तो what we are putting out over there regarding the क्यों को हम क्या बोलते हैं? Where बोलते हैं? No. Which? No. When? No. हम उसे क्या बोलते हैं? We are saying them why. तो मैं बोलूंगी why रमेश is beating the Tom. अब देखिए ये वर्ड मैंने यूज किया बीट. कल मैंने आपको जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द 3 फॉर्म ऑफ वर्ब. उसमें मैंने बताया था क्या होते हैं. बीट मीन्स पीटना. क्लियर? मेरा वॉलेट कहां है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा वॉलेट कहां है. पूछते हो ना आप घर में ममा से, यार ममा कहां रख दिया मेरा वॉलेट. वॉलेट कहां है मेरा. ठीक है. ये मेरा बैग कहां है, मेरा पेन नहीं मिल रहा है, वेयर इज माई पेन. तो क्या बोलते हैं हम उसे? वेयर इज माई वॉलेट या वेयर इज माई बैग. मेरा बैग कहां है. वेयर इज माई बैग. यही पूछते हैं ना हम. ठीक है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड. अब आपके पास बहुत सारे पेन्स पड़े हैं सामने. ठीक है. आप अपने फ्रेंड को बोलना है कि इसमें से कौन सा पेन तुम्हारा है. तो कौन सा के लिए क्या यूज करते हैं हम वर्ड. कौन सा के लिए हम वर्ड यूज करते हैं विच. विच पेन इज योर्स. कौन सा तुम्हारा पेन है. क्लियर? तुम कहां जाओगे. नहीं सॉरी, कहां तो हो गया. वेयर. तुम कब जाओगे. टेल मी. तुम कब जाओगे. कब के लिए हम क्या यूज करते हैं. हम यूज करते हैं व्हेन. व्हेन विल यू गो. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. तुम्हारा क्या नाम है. क्या के लिए. What. What is your name. Is it clear students? तुम कौन हो. कौन के लिए क्या यूज करते हैं. Who. Who are you. Next. ये किसकी बुक है. फॉर एग्जाम्पल ये बुक पड़ी हुई है कोई टेबल के ऊपर. मेरे को बोलना है किसकी बुक है. तो मैं कैसे बोलूंगी. आई एम गोइंग टू से एट दैट टाइम whose book is this. Clear? So आप कैसे हैं. कैसे के लिए क्या यूज होता है. how. How are you. Is it clear to all of you? Regarding all your interrogative adverb, your simple adverb and your relative adverbs. Now students, please make this thing clear in your mind after going from this place to your home. Clear? You have to learn this chapter.
and try to use these in your speaking as well. Clear? So, for today onwards, thank you very much. Bye-bye.